Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Today I am going to talk about relative arts with where, when. Relative arts we have already studied, but this is different. It's B2 level, B2.2. Very important topic and very useful when you write or when you speak German. So first step, I will write this sentence in relative. I will convert this sentence into relative arts with where, when. So we do that, you can note down, make your own sentence. If you think about something other, if you think about any other alternative, यदि आपको कोई और alternative लगता है कि इसका और कोई तरीका भी हो सकता है, please do write in the comment. I will appreciate your feedback. And let's learn the first sentence and then we'll see some more sentences which I have prepared. पहले ही sentence करते हैं, उसके बाद दूसरे sentences देखेंगे कैसे इसको लिखना है. तो what is the verb? There are two sentences. Now, verb helfen, danken. What is the subject? Die Frau ist here. Subject means वर्ब किससे conjugate हुआ है? यहाँ पे डी से फ्राउ से हुआ है, यहाँ पे इश के साथ हुआ है. तो subject. So underline the subject part. Subject is also called nominative. Subject is also nominative. So first of all underline the subject. वर्ब किससे conjugate हुआ है वो underline करना है. उसके बाद आपको यहाँ से select करना है. Where, when. Where, when. क्या है? Nominative में what is the question word? What is the question word here for nominative? You can know where is for nominative, when is for dative, and when is for accusative. ये चीज आपको याद है? ये चीज याद होगी? Nominative, where, accusative, when. याद रखना है आपको. And dative, when. बहुत ध्यान से करेंगे, देखिए, बहुत ध्यान से करेंगे. Subject किससे conjugate हो रहा है यहाँ पे? Die Frau. Nominative means we use this where. इसको हमें यूज करना है. दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होंगे, ठीक है? दो पार्ट्स है. ये फर्स्ट पार्ट हम कैसे करेंगे देखो. वेयर मेयर हेल्प्ड. वेयर मेयर हेल्प्ड. हु हेल्प्स मी? हु इज हेल्पिंग फ्रॉम? सो whosoever helps me is danke der Frau. Dem danke ich. Dem danke ich. Now look at the sentence. Look at the sentence. Where may I help? Whosoever helped me, I thank. Whom I am thanking here? This object. And this object is dative. Understand? Where may I help? Dem danke ich. So if we see this structure, this is our Hauptsatz. And this is our Nebensatz. What is this? In Hauptsatz, what position is second? What position last? This is nominative, this is Nebensatz, and this is my Hauptsatz. Because you know, in the Nebensatz, what position last? So whosoever helped me, this is the replacement of this first part. ये first part मैंने यहाँ पे replace किया इससे. Whosoever helped me, और आगे, I help dem danke ich, and dem for Frau. किसको मैं थैंक कर रहा हूँ? वुमेन को. उसको मैं थैंक कर रहा हूँ. जो मेरी मदद करता है उसे मैं थैंक करता हूँ. ये नेबनसाट्स है. ये हाउससाट्स. हाउससाट्स में वर्ब यहाँ पे सेकंड होती है और नेबनसाट्स में वर्ब यहाँ पे लास्ट होती है. नेबनसाट्स मींस वर्ब पोजीशन लास्ट, हाउससाट्स मींस वर्ब पोजीशन सेकंड. ये हमारा स्ट्रक्चर. बहुत ध्यान से देखो. सेकंड सेंटेंस करते हैं इसके बाद. सेकंड सेंटेंस करते हैं, समझ आएगा. ठीक है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट देखा. जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आर्टिकल्स लिखते हैं. बेस्ट इंटर आर्टिकल्स हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड सेंटेंस में. कॉमा आएगा कॉमा के बाद, और यहाँ पे वेयर से डब्ल्यू फ्लावर्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एक और देखिए. Der Mann erklärt mir die Grammatik. The man explains me. The man explains. Subject. The man explains me the grammar. I find it very good. I find it very good. I find it. What is the subject? The object. This is subject. This is object. Right? So again, subject is nominative, der man. So where mir die Grammatik erklärt, whosoever explains, जो मुझे ग्रामर समझाता है, der Mann erklärt mir die Grammatik, ich finde sie sehr gut. I find it very good. Where mir die Grammatik erklärt, die ich sehr gut finde.
वेयर नियरली ग्रामेटिक एट द एंड। कौन एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, तो वेयर नोमिनेटिव, जो मुझे ग्रामर समझाता है मुझे बहुत अच्छे समझाती है। क्या समझाती है? जी, तो जी इज फॉर डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया नेबनज़ार्ड्स वर्ब लास्ट, ये हो गया हाउपज़ार्ड्स वर्ब सेकंड। दिस इज रिलेटिव्स विथ देयर। बहुत ध्यान से बोलो, रिलेटिव्स विथ वेयर व्हेन। सो इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव रहेगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी है, एक्यूजेटिव भी हो सकता है, डाटिव भी हो सकता है, ये आपको पहचानना है। दिस यू नीड टू आइडेंटिफाई। फिंडन वर्ब, फिंडन आई फाइंड इट, इट मीन्स ग्रामेटिक। जी मैंने ग्रामेटिक के लिए यूज किया, डी ग्रामर, डी को जी भी लिखते हैं, डी जी। पढ़ा हुआ अपने दास एस और डेयर को इन भी बोलते हैं, तो वही रूल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बहुत ध्यान से देखोगे। Ria lernt Deutsch, Ria verdient sehr gut. Ria is learning German, Ria earns very good. तो कौन? Who is learning German? Ria. So where? Deutschland. ठीक है? Nebensatzs. Nebensatzs means verb position last. लेकिन Nebensatzs. Comma. Ria verdient sehr gut. Where Deutschland? तो Ria यहाँ भी. Is there any object? No object. Only subject. So there. verdient sehr gut. क्या मतलब? जो जर्मन सीखता है वो अच्छा अर्न करता है। यहाँ पे कौन सीख रहा है? रिया। रिया सीख रही है। कौन? रिया। हमने इसको चेंज करते हैं, रिया जर्मन सीख रही है, रिया अच्छे से कमा रही है, अच्छा कमा रही है। तो जो जर्मन सीखता है वो अच्छे कमाता है। ये सेंटेंस है, बस हो गया सेंटेंस। अपना सेंटेंस लिखो, कमेंट में बताओगे कैसा लग रहा है। Herr Verma gibt dem Kind die Antwort, das Kind fühlt sich sehr gut. किसने सब्जेक्ट है? मिस्टर वर्मा। तो वेयर dem Kind die Antwort gibt, जो बच्चों को आंसर देता है, whosoever gives the answer, das Kind fühlt sich sehr gut. Where dem Kind die Antwort gibt, इसमें हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। Das Kind fühlt sich sehr gut. Where dem Kind die Antwort gibt, give dem Kind die Antwort। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन चेंज करेंगे। Das Kind dankt Herrn Verma। The child thanks Mr. Verma। So where dem Kind die Antwort gibt, dem dankt das Kind। जो बच्चे की मदद करता है बच्चा उसको थैंक्स बोलता है। वेयर जो बच्चे की मदद करता है कौन करता है? मिस्टर वर्मा। das Kind dankt Herrn Verma, बच्चा थैंक्स बोलता है। तो जो बच्चे की मदद करता है देन उसको थैंक्स कौन बोलता है? बच्चा। dem dankt das Kind। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, नया स्ट्रक्चर है, नया फॉर्मेट है, नई ग्रामर है, बिल्कुल अलग है। शायद इवन मैं इससे पहले आपने नहीं पढ़ी, बट थोड़ा सा सिमिलरिटी है रिलेटिव्स आर्ट से। रिलेटिव्स आर्ट से, लेकिन उसमें भी दो टाइप्स हैं, एक तरफ हाउपज़ार्ड्स आते हैं, एक तरफ नेबनज़ार्ड्स आते हैं। नेबनज़ार्ड्स क्या होता है? वे मतलब नेबनज़ार्ड से सेंटेंस शुरू होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा नेबनज़ार्ड से और लास्ट सेकंड वाला सेंटेंस होगा हाउपज़ार्ड से। मतलब फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब लास्ट होगी और सेकंड सेंटेंस में वर्ब सेकंड पोजीशन। ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मेट है, आपको समझना है। Viele Menschen leben in Armut. Many people are living in poverty. Armut, poverty. Sie verdienen sehr wenig. They are earning very less. बहुत सारे लोग गरीबी में रह रहे हैं, वो बहुत कम पैसे कमाते हैं। कैसे लिखेंगे? Where in Armut live? Viele Menschen, ये नॉमिनेटिव, यह है तुम्हारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इक्वल टू नॉमिनेटिव। बस हमें इतना चेक करो। जो गरीबी में रहता है, who lives in Armut? They are very very who earn very less। बन गया सेंटेंस। ये हमारा नेबनज़ार्ड्स वर्ब लास्ट, ये हमारा हाउपज़ार्ड्स वर्ब सेकंड। ये आपको पता है, एक पढ़ते को ध्यान से सेंटेंस को नोट करो। कोई सवाल है तो पूछिए, कमेंट में लिखोगे। ये हमारा रिलेटिव्स आर्ट्स विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, very very important for B2 level students, especially for B2.2 जिन्होंने B1 अच्छे से किया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट सेंटेंस, meine Mutter ruft mich an, ich spreche eine Stunde mit ihr।
माई मदर कॉल्स मी, आई स्पीक विद हर 1 आवर। मेरी मदर कॉल कर रही है, मैं उनसे 1 घंटा बात करूँगा। कौन कॉल कर रहा है? मेरी मदर। सब्जेक्ट है माई नेम मोटर। तो देखिए यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? वेयर मिस ऑन रूट। अब आगे स्प्रेश एंड स्टूडेंट मटेरियल। तो मिड डे क्या है? मिड डे स्प्रेश इज ऑन स्टूडेंट। यहाँ पे प्रेपोजिशन के साथ है, जो मुझे कॉल कर रहा है मैं उससे 1 घंटा बात करूंगा। देखो वेयर आ गया और यहाँ पे आर्टिकल प्रेपोजिशन के साथ फॉलो हो रहा है, ये मिड है। ये हमारा स्ट्रक्चर। सेंटेंस ध्यान से देखो, समझ आया? ऐसे सेंटेंस खुद से बनाइए, बुक फॉलो करो, प्रैक्टिस बुक ले लो B2 ग्रामर की और उससे प्रैक्टिस करो, अच्छे से सेंटेंस बनाओ और जर्मन सीखते रहो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और कांटेक्ट करना इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर लाइव पेड बैच। Thank you so much for watching How to Sing this podcast.